and welcome to the channel Demystify. So today हम लोग chapter 1 the Cold War era, that is the first book contemporary world politics of class 12 political science को cover करने वाले हैं and समझने वाले हैं. Please guys, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ NCERT is your Bible. The key to crack the board exams or the CUET is your NCERT. So please read the NCERT again and again. मैं word to word NCERT stick कर ही सारा explanation करूँगी. This chapter provides a backdrop to the entire book. The end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era. In world politics, which is the subject matter of this book, it is therefore appropriate that we begin the story with a discussion of the Cold War. The chapter shows how the dominance of two superpowers, the United States of America and the Soviet Union, was central to the Cold War. It tracks the various arenas of the Cold War in different parts of the world. The chapter views the non-aligned movement as a challenge to the dominance of the two superpowers and describes the attempts by the non-aligned countries to establish a new international economic order as a means of attaining economic development and political independence. It concludes with an assessment of India's role in NAM and asks how successful the policy of non-alignment has been in protecting India's interest. बेसिकली ये जो कोल्ड वॉर है, इसका नाम कोल्ड वॉर इसलिए है बिकॉज दिस वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर्स, द USSR, दैट इज यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, दैट इज द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो दीज टू सुपर पावर्स, इन दोनों के बीच में कभी भी एक हॉट वॉर नहीं हुआ, मतलब एक फुल स्केल वॉर नहीं हुआ. छोटे मोटे कन्फ्रंटेशंस हुए, लेकिन ये हमेशा से कोल्ड वॉर हुआ. मतलब इसका स्पेक्यूलेशन रहा कि वॉर होगा, बट फॉर्चुनेटली वॉर हुआ नहीं. सो ये इन दोनों के बीच में द USSR, दैट इज़ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच की राइवलरी है, जो कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी था. आइडियोलॉजिकल इसमें बिकॉज द USSR वॉज शोड the ideology of communism and socialism, whereas the United States of America was for liberalism and capitalism. तो इन दोनों के बीच में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू एंडेड, ये दोनों ऐसे सुपर पावर्स थे, ये दोनों ऐसी स्टैंडिंग कंट्रीज थी, या फिर कह सकते हैं ये दोनों ही वो पावर्स थी जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही थी. तो एट दिस टाइम द वर्ल्ड वॉज अ बाइपोलर वन, क्योंकि इन दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड थी, और इसलिए इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में हु इज़ द मोर पावरफुल वन एंड हु इज़ द मोर बेटर वन, इस तरीके से लड़ाई रही. सो ये चैप्टर उसी के बारे में है. दिस चैप्टर ऑल्सो डील्स विद द NAM, दैट इज़ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि जिन कंट्रीज़ को ना ही USA के साथ जुड़ना था ना USSR के साथ जुड़ना था, दे हैड द थर्ड ऑप्शन, दे कैन बी न्यूट्रल, दे कैन बी NAM. तो NAM का कॉन्सेप्ट, उसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स, कैसे बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ उस टाइम पर NAM में उन्होंने ज्वाइन करा, कैसे उन्होंने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश करा, इस सब के बारे में वो डील करेगी. सो बेसिकली कोल्ड वॉर पूरे चैप्टर का एक बैकड्रॉप, पूरे बुक का बैकड्रॉप है, बिकॉज कोल्ड वॉर के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बाइपोलर सिस्टम रहा, USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर हमारा थर्ड चैप्टर US हेजेमोनी के बारे में, एंड सो ऑन. So this chapter will provide a backdrop for the entire book. हमें हर figure, हर word of the NCERT, every word is very important. So let's talk about these two. The end of the Second World War led to the rise of two major centers of power. The two pictures above symbolize the victory of the US and the USSR in the Second World War. ये फर्स्ट पिक्चर जो है, अमेरिकन सोल्जर्स रेजिंग द US फ्लैग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ इवो जीमा जापान ऑन 23 फरवरी 1945. तो ये US सोल्जर्स देख सकते हैं आप, ये यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग रेज कर रहे हैं. द सेकेंड पिक्चर, दिस वन shows Soviet soldiers raising the USSR flag on the Reichstag building in Berlin, Germany in May 1945. So with this, the introduction is over. Crisis. In April 1961, the leaders of the Union of Soviet Socialist Republics USSR were worried that the United States of America USA would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation off the coast of United States. बात ये हो रही है, यहाँ पर हमारे पास तीन हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं. द फर्स्ट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका मैप हमें यहाँ पर दिख रहा है. द सेकेंड इज़ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, दैट इज़ द USSR, एंड द थर्ड वन इज़ क्यूबा. क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है विच इज़ नियर USA. ये देखिए यहाँ पर हमें छोटा सा एक क्यूबा देखने को मिल रहा है. इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल वन,
बहुत ही छोटा सा आइलैंड नेशन है नियर यूएसए। अब बात यह हो रही है कि क्यूबा है तो यूएस के जस्ट पास, बट इट वॉज अंडर द यूएसएसआर, मतलब वो एक कम्युनिस्ट नेशन था। तो यूएसए एंड क्यूबा वर वेरी क्लोज फिजिकली, बट आइडियोलॉजिकली क्यूबा एंड यूएसएसआर पर क्लोज। तो अप्रैल 1961 की बात हो रही है जब यूएसएसआर के जो लीडर्स थे उन्हें ये डर था कि ऐसा ना हो कि यूएसए क्यूबा को ओवर रूल कर ले। क्यूबा के लीडर उस वक्त के थे फिडेल कास्ट्रो, उसको ओवरथ्रो करके, उसके प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो करके एंड क्यूबा को अपना एलाई बना ले। ओके, क्यूबा उस टाइम पे सोवियत यूनियन का एलाई था एंड वो Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, decided to convert Cuba into a Russian base. तो नहीं, ये डर था कि ऐसा ना हो कि क्यूबा इतना छोटा सा है और यूएसए के इतने पास है, तो ऐसा ना हो कि वो फिडेल कास्ट्रो वहाँ के प्रेसिडेंट को यूएसए हटा के एंड वहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर ले। तो क्यूबा फिर उस वक्त के सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने सोचा कि हमें क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। How? In 1962, he placed nuclear missiles in Cuba. The installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range and nearly doubled the number of bases of cities in the American mainland which could be threatened by the USSR. So 1962 में निकिता खुश्रेव ने क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर लिया और क्यूबा में रशियन मिसाइल्स को इंस्टॉल कर लिया। नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम। देखिए उस टाइम पे जो बात थी, उस टाइम तक न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो चुके थे, तो ये फर्स्ट टाइम था कि पहले तो जितने भी यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे उसके लिए थ्रेट तो था यूएसए को एंड वाइस वर्सा, यूएसए से भी थ्रेट था यूएसएसआर को, बट क्योंकि अब इतने पास में क्यूबा में इंस्टॉल हो गई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैप क्या दिखा रहा है, शोइंग द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर मिसाइल्स अंडर कंस्ट्रक्शन इन क्यूबा यूज ड्यूरिंग द सीक्रेट मीटिंग्स इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये बता रहा है कि अगर क्यूबा में जो उन्होंने मिसाइल्स को इंस्टॉल किया है उससे यूएसए की रेंज यहाँ तक पहुँच गई है, डबल हो गई है। मतलब यूएसए को इतना खतरा हो सकता है कि अगर क्यूबा ने अपनी ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया तो यूएसए का इतना हिस्सा तो डायरेक्टली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विच वॉज अ वेरी बिग थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ यूएसए। 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the Americans became aware of it. So after 3 weeks, Americans became aware कि क्यूबा में निकिता ने अपने क्यूबा को अपना रशियन बेस कन्वर्ट कर लिया है। The US President John F. Kennedy and his advisors were reluctant to do anything that might lead to a full-scale nuclear war between the two countries. तो देखिए दोनों कंट्रीज़ को पता था कि वॉर को जितना है हमें अवॉइड करना है, बिकॉज अगर एक वॉर हुआ और अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हुआ देन everything will be destroyed, because सबको पता था कि न्यूक्लियर वेपन्स में कितनी पावर थी। They had already seen the destruction caused by the nuclear weapons in Hiroshima and Nagasaki. So जो अमेरिकन्स थे अंडर जॉन एफ कैनेडी, उस टाइम के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो रिलेक्टेंट थे कि ऐसा उन्हें कुछ नहीं करना था जिस वजह से एक फुल स्केल वॉर हो सके, बट उनको इस थ्रेट को आंसर भी करना था कि जो उन्होंने क्यूबा में रशियन मिसाइल्स इंस्टॉल कराई थी। तो व्हाट दे डिड वॉर, बट दे वर full scale war, but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba. पर उन्हें क्यूबा से वो मिसाइल्स हटानी भी थी और ऐसा भी कुछ नहीं करना था जिससे फुल स्केल वॉर हो जाए। So what Kennedy did was he ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of its seriousness. तो उन्होंने सोचा कि ऐसा एक करते हैं जिससे फुल स्केल वॉर भी ना हो। उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर किया कि सोवियत यूनियन से जितनी भी शिप्स क्यूबा में आ रही है, यू हैव टू स्टॉप देम, यू डोंट हैव टू लेट देम गो थ्रू, जिससे यूएसएसआर को पता चल जाए कि व्हाट यूएस इज केपेबल ऑफ। A clash seemed imminent in what came to be known as the Cuban Missile Crisis. The prospects of this clash made the whole world nervous, for it would have been no ordinary war. तो अब जब ये सीरीज़ और ये डेवलपमेंट्स हो रहे थे, दिस मेड द होल वर्ल्ड ट्रेम्बल विथ फियर, क्योंकि सभी को लग रहा था कि अगर एक ने भी कोई सीरियस कदम उठा लिया सो द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड। एवरीबडी वॉज फियरिंग इट। और ये वाला जो पॉइंट है, दिस वॉज अ वेरी हाई पॉइंट इन द कोल्ड वॉर एंड दिस वॉज नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। Eventually, to the world's great relief, both sides decided to avoid war. The Soviet ships slowed down and turned back. तो यूएसए ने उनको इंटरसेप्ट, यूएसए की शिप्स ने उसको इंटरसेप्ट करा, बट यूएसएसआर ने उसका कोई वॉर से जवाब ना दे के दे स्टॉप एंड दे टर्न्ड अराउंड एंड फॉर्चुनेटली एंड टू द वर्ल्ड्स रिलीफ
कोई फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। The Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as the Cold War. The Cold War, ये देखिए यहाँ पर Cold War की definition है. The Cold War referred to the competition, the tensions and a series of confrontations between the United States and Soviet Union backed by their respective allies. Fortunately, however, it never escalated into a hot war, that is a full-scale war between these two powers. There were wars in various regions, with the two powers and their allies involved in warfare and in supporting regional allies, but at least the world avoided another global war. So World War I and World War II के बाद it was to great relief कि एक another global war and this time the nuclear war was avoided, but थोड़े मोटे छोटे मोटे confrontations and होते रहे इन दोनों कंट्रीज़ और सुपर पावर्स के बीच में, बट एक हॉट वॉर में ये एस्केलेट नहीं हुआ। तो व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर एक वो कंपटीशन है, वो टेंशन है और वो सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। उनके साथ साथ उनकी रिस्पेक्टिव एलाइज़ ने भी उनका साथ दिया था। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी एलाइज़ वर्सेस सोवियत यूनियन और उसकी एलाइज़। The Cold War was not simply a matter of power rivalries, of military alliances and of the balance of power. These were accompanied by a real ideological conflict as well, a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. तो ये सिर्फ military conflict नहीं था कि कौन ज़्यादा powerful है. It was also an ideological conflict कि किसकी ideology ज़्यादा better है. कैसे? The Western Alliance headed by the US represented the ideology of liberal democracy and capitalism, while the Eastern Alliance headed by the Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communism. So this was a conflict कि USA ने जो लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया है वो ज़्यादा बेटर है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लाइफ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, या फिर USSR की कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी दैट इज़ बेटर। तो ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था। What is the Cold War? The end of the Second World War is a landmark in contemporary world politics. In 1945, the Allied forces led by the US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis powers led by Germany, Italy and Japan, ending the Second World War. The war involved almost all the major powers of the world and spread out to regions outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma and parts of India's northeast. The war devastated the world in terms of loss of human lives and civilian property. The First World War had earlier shaken the world between 1914 and 1918. तो जो Second World War था which took place between 1913 and 1945, इस Second World War में Allied powers जो कि थी ब्रिटेन, फ्रांस, USA एंड सोवियत यूनियन, इन चार पावर्स ने मिलकर एक्सिस पावर जो थी जर्मनी, इटली, जापान, इन तीनों पावर्स को हराया था। एंड आउटसाइड ऑफ यूरोप भी इस वॉर का बहुत इम्पैक्ट रहा है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा वगैरह जगह पर, एंड पूरे वर्ल्ड को इसने शेक करा था। वर्ल्ड वॉर 2 ने लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा हुआ था, प्रॉपर्टी, सिविलियन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन वगैरह एवरी वे में। पहले भी 1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी इसी तरीके से कुछ डिस्ट्रक्शन कॉज किया था। The end of the Second World War was also the beginning of the Cold War. The World War ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender. Second World War जैसे ही end हुआ तो उसके बाद मैक्सिमम चीज़ जो थी वो तो अब डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी पूरी तरीके से, जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान, ये अपनी बहुत कुछ पावर्स खो चुकी थी। एंड इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 2 सुपर पावर्स थी वो थी सोवियत यूनियन, USSR एंड द USA। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुआ? जब US ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी 2 जापानीज सिटीज़ के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ड्रॉप कर दिया एंड जापान को सरेंडर करना पड़ा। अब इसके 2 व्यू पॉइंट्स हैं इस बॉम्ब गिराने के। देखिए, क्रिटिक्स ऑफ द US डिसीजन, जो कि US को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपका बॉम्ब गिराना गलत था, दे आर्ग्यू दैट द US knew Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. They suggest that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was supreme. जो क्रिटिक्स हैं जो उसको गलत मानते हैं वो कहते हैं कि USA को पता था कि जापान ऑलरेडी सरेंडर करने वाला है, बट उन्होंने जानबूझकर जापान की इन सिटीज़ पे बॉम्ब गिराया ताकि सोवियत यूनियन जो है वो एशिया में और जापान में अपनी गेन्स ना कर सके, उसको अपनी टेरिटरी अपने अंडर ला ना सके, अपनी एलाई ना बना सके। जो US के सपोर्टर्स हैं दे कहते हैं दैट दे से दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड लाइव्स।
जो सपोर्टर्स है दे से कि यार बॉम्ब गिराना वाज द सही डिसीजन बिकॉज इसने फटाफट वॉर को ख़त्म कर दिया और ऑल लॉस ऑफ लाइफ्स को रोक दिया. Whatever the motives, the consequence at the end of the Second World War was the rise of two new powers on the global stage. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on earth. Britain, France, Germany, Italy, यूरोप के बहुत एरिया में पूरा यूरोप तो पूरी तरीके से जैसे पूरा ही डिस्ट्रक्शन हो गया था यूरोप का, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था. इस वजह से यूएस एंड द यूएसएसआर वर द ओनली सुपर पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज. While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as two superpowers rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. The logic is simple yet powerful. तो ये कोल्ड वॉर का आउटकम था कि दो ऐसे राइवल्स आ गए, यूएस एंड यूएसएसआर. ये बात तो सभी को पता थी कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, एटम बॉम्ब्स का यूज़ हुआ, तो इट वुड कॉज डिस्ट्रक्शन फॉर एवरीबडी. कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वॉर और एटम बॉम्ब्स के डिस्ट्रक्शन को नहीं सह पाएगी. एवरीथिंग वुड बी डिस्ट्रॉयड टोटली. When the logic is simple, this is known as the logic of deterrence. What is it? When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. In spite of provocations, neither side would want to risk a war since no political gains would justify the destruction of their society. तो ये लॉजिक सिंपल था. दोनों सुपर पावर्स को लग रहा था कि यार कितने भी प्रोवोकेशंस हो, अगर हमने न्यूक्लियर वॉर को शुरू कर दिया तो एक सुपर पावर को पता था कि यार दूसरे सुपर पावर के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो अगर हमने एक न्यूक्लियर वेपन शूट किया तो वो भी वहाँ से न्यूक्लियर वेपन शूट करेंगे एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड. तो इसका कोई गेन नहीं होगा. तो इतने सब प्रोवोकेशंस, कन्फ्रंटेशंस के बावजूद कोल्ड वॉर रिमेन्ड अ कोल्ड वॉर एंड डिड नॉट टर्न इनटू हॉट वॉर. In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rivals, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. This is called the logic of deterrence. Both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स जो है, एक वॉर की तरफ वॉर लड़ने वाली दोनों साइड्स के पास इतनी इनफ पावर है कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है. तो अगर वॉर स्टार्ट होगा तो उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलेगा. दोनों में से कोई भी साइड विनर घोषित नहीं हो पाएगी क्योंकि बोथ द साइड्स विल बी टेरिबली डिस्ट्रॉयड. Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a Cold War and not hot or shooting war. The deterrence relationship prevents war, but not the rivalry between powers. Please make a note here. ये जो deterrence relationship है, ये दो सुपर पावर्स के बीच में झगड़ा, वॉर तो रोक लेती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक rivalry नहीं रोकती है. So that is what is important to note here. Note the main military features of the Cold War. The two superpowers and the countries in the rival blocs led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. तो क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो दोनों सुपर पावर्स को याद रखने थे, वो थे कि द बोथ ऑफ देम हैव टू बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने वॉर लड़ी तो इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, और दोनों सुपर पावर्स ने अगर कुछ ऐसा करा जिस वजह से वॉर स्टार्ट हो गई तो इसका पूरे तरीके से डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो जब दो सुपर पावर्स एक डेटरेंस रिलेशनशिप में होती है तो अगर वो लोग वॉर लड़ेंगे तो इट वुड बी मैसिवली डिस्ट्रक्टिव. ये चीज़ दोनों सुपर पावर्स को ध्यान रखना ज़रूरी था. These pictures depict the destruction caused by the bombs dropped by the US on Hiroshima. The bomb was codenamed Little Boy. हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बॉम्ब गिरा उसका नाम था फैट मैन. लिटिल बॉय और फैट मैन जो थे वो सिर्फ 15 and 21 किलो टन्स के थे, बट अर्ली 1950s में यूएस और यूएसएसआर में ऑलरेडी इतने 10 and 15,000 किलो टन्स तक के न्यूक्लियर वॉर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वॉर 15 and 21 किलो टन्स एंड 10 and 15,000 किलो टन्स, 15 किलो टन्स एंड 15,000 किलो टन्स से यू कैन इमेजिन कि कितने डेडली वेपन्स दोनों के पास थे. मतलब 15 and 21 किलो टन्स थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन, लेकिन तब तक ऑलरेडी 15,000 किलो टन्स तक के वेपन्स दोनों कंट्रीज़ के बाद हो चुके थे. तो ये बात तो सच थी कि अगर वॉर स्टार्ट हुआ तो इट वुड कॉज डिस्ट्रक्शन फॉर एवरीबडी.
Responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war. In this sense, the Cold War managed to ensure human survival. Emergence of two power blocks. The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. In a world sharply divided between the two alliance systems, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. तो दोनों सुपर पावर्स ऑफकोर्स बहुत कीन थे कि उनका स्फीयर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज तक एक्सपैंड हो सके. ये पूरा वर्ल्ड जो था वो शार्पली डिवाइड हो चुका था. पूरा वर्ल्ड तो नहीं, बट जो जितने भी कंट्रीज थे वो शार्पली डिवाइड हो चुके थे यूएस और यूएसएसआर के बीच में. एंड जो बच्चे हुए थे वो फिर NEM या थर्ड वर्ल्ड या इससे ऐसे जुड़े हुए थे. सो जो भी सुपर पावर्स थे उन्होंने अपने अलाइज को अपने क्लोज रखा था. द स्मॉलर स्टेट इन द अलाइंसेस यूज द लिंक टू द सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पसेस. उनका क्या पर्पस था? दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, weapons and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. तो उनके रीजनल नेबर्स वगैरह के साथ उनकी जो राइवलरी थी उसके अगेंस्ट उनको इकोनॉमिक पावर, वेपन्स, प्रोटेक्शन सुपर पावर्स ने allies को प्रॉमिस किया था. The alliance system led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into two camps. This division happened first in Europe. सबसे पहले यूरोप में हुआ था कि पूरे यूरोप को ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में डिवाइड कर दिया था. The west Europe was with the US and the eastern Europe was with the USSR. इसी वजह से these alliances were called the Western Alliance and the Eastern Alliance. ये map you can see here. The yellow were the NATO members, the red were the Warsaw Pact members, the green were the other communist nations which were not sided with the USSR or the Warsaw Pact members. इसमें दो थे, एक तो यूगोस्लाविया एंड अल्बानिया. These two were the communist nations which did not side with the Warsaw Pact members. This was the first world, you can see this, the third world and the second world. The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization, which came into existence in April 1949. तो April 1949 में with 12 members, 12 states के साथ एक NATO North Atlantic Treaty Organization या association form हुई थी. और इनका मोटो ये था कि if there is an armed attack on any one of them, तो all of these would come together and it would be considered an attack on all of them. Each of these would be states would be obliged to help each other in that case. The Eastern Alliance was known as the Warsaw Pact and it was led by the Soviet Union. The Western one, the NATO, was led by the US, of course. It was created in 1955, that is 6 years after the creation of NATO, and its principal function was to counter the NATO's forces in Europe. International alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states. As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers. In some cases, the superpowers used their military power to bring countries into their respective alliances. जो जितने भी international alliances बने थे Cold War के टाइम पे, उनका यही एक मोटो था कि were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states. तो यूरोप जो था वो मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना, वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया था ईस्टर्न और वेस्ट यूरोप के बीच में. कुछ केसेस में सुपर पावर्स मिलिट्री यूज़ करती थी ताकि अपनी टेरिटरी पे कंट्रोल कर सके. जैसे सोवियत इंटरवेंशन इन द ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जांपल. द सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप बैक्ड बाय वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन टू इंश्योर दैट द ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप रिमेन्ड विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. उन्होंने मिलिट्री यूज़ करा ताकि वो ईस्टर्न यूरोप को अपने कंट्रोल में रख सके सोवियत यूनियन ने. ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में, जो मिडल ईस्ट है, मतलब एशिया के ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अलग अलायंस सिस्टम बनाया जिसका नाम था सियाटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द सेंटो. The Soviet Union and Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea and Iraq. तो आप देख सकते हो कि कैसे ब्रिक बाय ब्रिक दोनों के बीच में फाइटिंग हो रही है. इधर नाटो हुआ तो इधर वॉर्सो पैक्ट हुआ, इधर उन्होंने सेंटो एंड सियाटो बनाया तो इन्होंने चाइना एंड सोवियत यूनियन ने नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक के साथ क्लोज रिलेशंस रखे. The Cold War threatened to divide the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. Cracks and splits within the alliances were quick to appear. Communist China quarreled with the USSR towards, तो देखिए
तो द कोल्ड वॉर ने पूरे थ्रेटन करा था कि पूरी वर्ल्ड को दो अलग अलग अलायंस सिस्टम में वो डिवाइड कर देगी। एंड इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो थी वो भी ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी, जो कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो ब्रिटेन एंड फ्रांस से फ्री हुई थी, उनको यही चिंता थी कि वो अपनी पावर छोड़कर उन्हें फिर से सुपर पावर के अंडर आना पड़ेगा। एंड ये सुपर पावर्स थी, इसमें ऑफकोर्स क्रैक्स एंड स्प्लिट्स अपीयर हो गई क्विकली। जैसे कम्युनिस्ट चाइना ने यूएसएसआर के साथ एंड में 1950s 19 में झगड़े शुरू हो गए कम्युनिस्ट चाइना और यूएसएसआर के बीच में। एंड सीक्रेटली चाइना ने यूएस के साथ एक नया डील भी कर लिया था। They fought a brief war over a territorial dispute. The other important development was the non-aligned movement, which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances. तो एक non-aligned movement हुआ था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसने एक नया तरीका दिया था कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट या जो कंट्रीज़ को दोनों सुपर पावर के साथ नहीं जुड़ना था, वो NAM में स्टे रह सकती है। वाई द सुपर पावर्स नीडेड एलाइज? देखो, सुपर पावर्स खुद इतने बड़े थे, उनके पास इतनी बड़ी आर्मीज थी, इतने वेपन्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे, उनकी कंबाइंड फोर्सेस जो थी वो बहुत बड़ी थी और बहुत पावरफुल थी। तो ऐसे में वाई डिड सुपर पावर्स नीडेड एलाइज? क्यों उनको ये छोटे स्टेट्स की ज़रूरत थी? इट वॉज बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स. There are 4 reasons. There are actually 5 reasons. The first reason is vital resources such as oil and minerals. क्योंकि देखिए, कोई भी सुपर पावर उसके पास सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यूएस में यूएस को भी ऑयल, यूएसआर वगैरह को भी ऐसे कुछ मिनरल्स वगैरह चाहिए होंगे जो उनके पास दे लैक्ड इट। सेकेंड वॉज द टेरिटरी, जहाँ से वो सुपर पावर्स जो थी अपनी वेपन्स को लॉन्च कर सके। जैसे कि निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को अपनी एक रशियन बेस बनाया था, जिससे कि वो लॉन्च कर सके न्यूक्लियर मिसाइल्स यूएसए के लिए। थर्ड वॉज द लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्पाई करने के लिए। फोर्थ था इकोनॉमिक सपोर्ट, क्योंकि जब छोटी छोटी एलाइज साथ में आएगी तो दे कुड मेक फॉर अ बिगर इकोनॉमिक सपोर्ट, और मिलिट्री एक्सपेंस को भी थोड़ा सा सेटल हो सकता था। इसके अलावा फिफ्थ रीज़न इज़ द आइडियोलॉजिकल रीज़न। देखिए, जितने सुपर पावर्स के अंदर जितनी ज़्यादा एलाइज ज्वाइन होगी तो इसका मतलब उनकी आइडियोलॉजी इज़ मोर सुपीरियर दैन दी अदर वन। तो ये लॉयल्टी ऑफ एलाइज की जो थी, दे सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स वर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल, दैट लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म वॉज बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, वाइस वर्सा। मतलब फॉर एग्जांपल, एक कंट्री यूएसए के अंडर है तो मतलब अच्छा यूएसए की पॉलिसी ज़्यादा बेटर है। दो कंट्रीज अगर यूएसएसआर के अंडर है मतलब यूएसएसआर की ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से वॉर ऑफ आइडियाज़ के लिए भी एलाइज का इंपॉर्टेंस ज़रूरी था। Arenas of the Cold War. The Cuban Missile Crisis that we began this chapter with was only one of the several crises that occurred during the Cold War. तो ये Cuban Missile Crisis सिर्फ एक ही थी, इसके अलावा और बहुत सारी हुई थी। Cold War में ऐसी बहुत सारी shooting wars भी हुए थे, but it is important to note that ये crisis full scale war में नहीं lead हुई। The two superpowers were poised for direct confrontations in 3 places. यहाँ पर 3 places हैं: कोरिया in 1950-53, बर्लिन 1958 एंड 262 एंड कॉन्गो इन द अर्ली 1960s। इसके अलावा भी और बाकी जगहों पर भी क्राइसिस हुई थी। क्राइसिस deepened as neither of the parties involved was willing to back down. तो जब हम एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, वी रिफर देयरफॉर टू एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और थ्रेटेंड टू अकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस सर्टन लिमिट्स। तो छोटे मोटे वॉर हुई, थोड़ी शूटिंग हुई, लेकिन सर्टन लिमिट्स को क्रॉस करके फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। A great many lives were lost in some of these arenas like कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान। बहुत लाइव्स लॉस हुई थी कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में, लेकिन वर्ल्ड वॉज स्पेयर्ड अ न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल हॉस्टिलिटीज। दिस वॉज स्टिल अ रिलीफ, बिकॉज अगर ग्लोबल वॉर हो जाता या दोनों सुपर पावर्स के बीच में डायरेक्ट वॉर हो जाता, then the world would have surely been totally destroyed. In some cases, huge military buildups were reported. In many cases, diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to misunderstanding. तो कहीं ना कहीं misunderstandings हुई थी, shootings हुई थी, but still वो certain limits cross नहीं कर पाया, इसलिए full scale war में turn नहीं हुआ fortunately. Sometimes countries outside the two blocks, for example the non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts and averting some grave crises. जैसे Jawaharlal Nehru was one of the key leaders of the NAM, played a crucial one of the key leaders of the NAM. देखिए NAM के 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे. So they played a crucial role in mediating between the two Koreas, साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में मीडिएट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. कॉन्गो क्राइसिस में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बहुत ही एक की मीडिएटरी रोल प्ले किया था. बाय एंड लार्ज इट वाज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट. सुपर पावर के रियलाइजेशन पे डिपेंड करता था कि हमें कोई भी वॉर को अवॉइड करना है जितना हो सके. हम लोग उसको जितना लिमिट कर सके, जितने रिस्पॉन्सिबली हम बिहेव करेंगे उतना बेटर होगा.
तो कोल्ड वॉर जो है वो वन एरिना से दूसरी एरा में रोल आउट हुआ, लेकिन द लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट वाज इंक्रीजिंगली एविडेंट, मतलब उन लोगों ने रिस्ट्रेंट रखा अपने आप को, फुल स्केल वॉर में नहीं कन्वर्ट होने था। तो ये सुपर पावर की पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to teeth and to constantly prepare for war. Huge stocks of arms were considered necessary to prevent wars from taking place. तो ठीक है, भले ही फुल स्केल वॉर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच में सस्पेशन बहुत था, तो दोनों ही सुपर पावर्स ने अपने आप को भर लिया, जितनी हो सके उतने न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास स्टोर कर करके रखे। लेकिन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ह्यूज स्टॉक्स ऑफ आर्म जो थे, ये न्यूक्लियर वेपन जो थे, यही एक रीज़न था जिस वजह से फुल स्केल वॉर नहीं हो पाया, क्योंकि उनको ये पता था कि अब उनके पास इतने ज़्यादा वेपन्स हो चुके कि अगर उन्होंने एक ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फुल स्केल वॉर हुआ तो टोटल डिस्ट्रक्शन वॉज इनएविडेंट। कोई भी टोटल डिस्ट्रक्शन को फिर वापस वो नहीं कर सकता, कुडंट स्टॉप देम। तो एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं इतने जो वॉर्स, इतनी जो न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने इकट्ठा की थी, यही एक रीज़न था, ये एटम बॉम्ब, ये न्यूक्लियर वेपन्स, जिस वजह से फुल स्केल वॉर नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर 2-3 मिसाइल्स भी अगर हो गई देन जस्ट एवरीथिंग इज ओवर। The two sides understood that war might occur in spite of restraint. Either side might miscalculate the number of weapons. तो ऐसा दोनों साइड को ये समझ में आया था कि यार हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए दोनों साइड में से, कि मिसकैलकुलेट कर ले कि यार उसके पास तो इतने ही वेपन्स हैं, उसके पास तो बहुत कम है, मैं अगर फायर कर दूंगा तो वो, मतलब अगर हम फायर कर देंगे तो वो हार जाएंगे, उनके पास कुछ रहेगा नहीं, या उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है कि वो एक दूसरे के इंटेंशन गलत समझ रहे, हो सकता है कि गलती से किसी ने फायर कर दिया कोई मिसाइल। देखिए, जो ये जिनके पास एक्चुअल पावर होती नहीं है, जिनको ऑर्डर्स फॉलो करने थे, कभी कभी वो लोग भी ऐसा कुछ कर देते हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि ये कॉमन मैन में से ही तो एक टायरेंट डिक्टेटर जितने भी ये एडोल्फ हिटलर, हु वाज अ कॉमन मैन, कोई बहुत पावरफुल वो नहीं था, बट ही लेड हिमसेल्फ टू पावर। तो ऐसे केसेस में मतलब कुछ भी हो सकता है, दे कैन बी एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे केस में बोथ द सुपर पावर्स अंडरस्टूड कि यार हमें केयरफुल रहना है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, व्हाट इफ इट हैपन्स, ऐसे केस में क्या करेंगे। तो ऐसे केस में दोनों यूएस एंड यूएसएसआर ने एक साथ कोलैबोरेट करके अपने आप को लिमिट करने की कोशिश करी कि वो इतना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अपने साथ नहीं करे, या एलिमिनेट करे सर्टन काइंड्स ऑफ वेपन्स को, एक स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन हो दे डिसाइडेड, एंड इट कुड बी थ्रू आर्म्स कंट्रोल। तो आर्म्स कंट्रोल स्टार्टेड फ्रॉम 1960s, और दोनों साइड्स ने 3 इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, एक डिकेड मतलब 10 साल के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करे, जैसे द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सो ये तीनों ट्रीटीज़ ने कहीं ना कहीं उनको हेल्प करा कि वो अपने वेपन्स को लिमिट करे, इतने ज़्यादा अपने वेपन्स को ना स्टोर करे, एंड कोई भी आगे मिसअंडरस्टैंडिंग को फुल स्केल वॉर में एस्केलेट होने से हेल्प करे। सो ये 3 जो उन्होंने अग्रीमेंट साइन करे थे, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कोल्ड वॉर की टाइमलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे 1947 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने डॉक्ट्राइन अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म के ऊपर एक इशू करा था, उनकी डॉक्ट्राइन इशू करी थी। 47 to 52 वॉज द मार्शल प्लान, दैट इज़ द यूएस एड फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। 48-49 में बर्लिन ब्लॉकेड बाय सोवियत यूनियन एंड द एयरलिफ्ट ऑफ सप्लाइज टू द सिटीजन्स ऑफ वेस्ट बर्लिन बाय द यूएस एंड इट्स एलाइज। 50-53 में कोरियन वॉर, 54 में defeat of the French by the Vietnamese at Dien Bien Phu. Second was the signing of Geneva Accords. Third was the division of Vietnam along the 17th parallel, and fourth is the formation of SEATO. 54 to 75 American intervention in Vietnam. 55 में signing of Baghdad Pact, later CENTO. 56 में Soviet intervention in Hungary. 1961 में US sponsored Bay of Pigs invasion of Cuba and construction of the Berlin Wall. 1962 में Cuban Missile Crisis. 1965 में American intervention in the Dominican Republic. 1968 में Soviet intervention in the Czechoslovakia. 1972 में US President Richard Nixon's visit to China. 78 to 89 Vietnamese intervention in Cambodia. 1979 to 89 Soviet intervention in Afghanistan. 1985 Gorbachev becomes the president of the USSR, becomes the reform process. 1989 में fall of the Berlin Wall, mass protest against the governments in Eastern Europe. 1990 में unification of Germany. 1991 में disintegration of the Soviet Union and end of Cold War era. So this is the timeline of Cold War, very important, please guys do not miss it.
यहाँ पर हम ये दो कार्टून्स देख सकते हैं, ये दोनों कार्टून्स जो है these are drawn by well-known Indian artist known as Kutti and these depict the Indian view of the Cold War। देखिए ये वाला जो है इसमें यूएसए के जब प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन और चाइना जो थे इन्होंने यूएसएसआर के बिहाइंड जाके एक सीक्रेट पैक्ट में अलाइन अग्री करने का थोड़ा सी कोशिश करी थी। सो दिस वॉज keeping the USSR in the shadow in the dark and USA and China कहीं ना कहीं एक साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके यहाँ पर जो है दिस इज़ प्रेसिडेंट जॉनसन इन मोर ट्रबल्स ओवर वियतनाम बिकॉज प्रेसिडेंट जॉनसन के जो रूल्स थे वियतनाम में जो क्राइसिस चल रहा था उसके ऊपर प्रेसिडेंट जॉनसन ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे विच वाज हाईली क्रिटिसाइज एंड इस वजह से बहुत लॉस ऑफ लाइव्स हुआ था, अमेरिकन लाइव्स, बहुत लॉस ऑफ वियतनामीज लाइफ, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। सो दिस इज़ दैट प्रेसिडेंट जॉनसन को रिग्रेट करना पड़ा उनके डिसीजन अबाउट वियतनाम। देखिए हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं the founding members of NAM। there were 5 founding members of NAM। the first Joseph Broz Tito, Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser, Sukarno and Kwame Nkrumah। ऑल 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना ज़रूरी है। जोसेफ ब्रोज टीटो का है प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया, fought against Germany in World War II, communist, maintained some distance from the Soviet Union and forced unity in Yugoslavia। जो जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं, he is the first Prime Minister of India, made efforts for Asian unity, decolonization, nuclear disarmament, advocated peaceful coexistence for security and world peace। The third one is Gamal Abdel Nasser। He ruled Egypt from 1950 to 1970, espoused the causes of Arab nationalism, socialism and anti-imperialism, nationalized the Suez Canal leading to an international conflict in 1956। Fourth is Sukarno। He was the first president of Indonesia, led the freedom struggle, espoused the causes of socialism and anti-imperialism, organized the Bandung Conference, overthrown in a military coup। And the fifth and the last founding member of NAM is Kwame Nkrumah। He was the first prime minister of Ghana। He led the freedom movement, advocated the causes of socialism and African unity, opposed neo-colonialism, removed in a military coup। So ये 5 founding members हैं, इनके बारे में information आपको learn करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं challenge to bipolarity। We have already seen how the Cold War tended to divide the world into 2 rival alliances। It was in this context that non-alignment offered the newly decolonized country of Asia, Africa and Latin America a third option not to join either alliance। तो ये NAM जो found हुआ था non-aligned movement, this was a challenge to bipolarity कि जितने भी nations थे, countries थे, especially the newly independent one जो ब्रिटेन से, फ्रांस से फ्री हुए थे, उनके पास एक ऑप्शन था कि दोनों सुपर पावर्स में ना जुड़ के वापस उनके स्लेव ना बन के वो NAM का पार्ट बन सकते हैं। Roots of NAM went back to friendship between 3 leaders, Yugoslavia's Joseph Broz Tito, India's Jawaharlal Nehru and Egypt's leader Gamal Abdel Nasser, who held a meeting in 1956। Indonesia's Sukarno and Ghana's Kwame Nkrumah strongly supported them। तो ये 5 founding members हो गए। These 5 leaders came to be known as the 5 founders of NAM। The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961। This was the culmination of at least 3 factors। Belgrade 1961 में सबसे पहला summit हुआ था and इसपे 3 factors important थे। First was cooperation among these 5 countries। Second was growing Cold War tension and its widening arenas। And third was the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena। By 1960, there were 16 new African members in the UN। The first summit was attended by 25 member states over the years। The membership of NAM has expanded। तो पहली summit 25 member states ने attend करी थी, over the years वो increase हो गई। The latest meeting was the 18th summit held in Azerbaijan in 2019। It included 120 member states and 17 observer countries। So आप देख सकते हो कि कितना 25 to 120 it's a big thing। जो first summit 1961 में हुई थी बेलग्राड में, तब से। As non-alignment grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it। This made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define in very neat and precise terms what did it really stand for। Increasingly, NAM was easier to define in terms of what it was not। It was not about being a member of an alliance। तो NAM में नई नई कंट्रीज जुड़ती गई, सबका एजेंडा अलग होता गया, तो फिर NAM को डिफाइन करना मुश्किल होता गया कि what did it stand for। तो फाइनली फिर ऐसा टाइम है कि जब NAM क्या नहीं था वो ईजी था डिफाइन करना। इट वॉज अबाउट नॉट बीइंग एन मेंबर ऑफ द अलायंस। दोनों अलायंस यानी ना तो ईस्टर्न अलायंस ना वेस्टर्न अलायंस का पार्ट ना होना वॉज अबाउट बीइंग इन द NAM। ये एक सबसे इजी डेफिनेशन हम कह सकते हैं NAM की हो गई एक टाइम पर। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेज शुड नॉट बी कंसीडर्ड आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। यहाँ पर हम 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट इज आइसोलेशनिज्म
आइसोलेशनलिज्म एंड सेकेंड इज न्यूट्रलिटी. देखिए, नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये जो NAM उन्होंने फोर्ज करा था, दिस वॉज नॉट अबाउट न्यूट्रलिटी, दिस वॉज नॉट अबाउट आइसोलेशनिज्म. आइसोलेशनिज्म मतलब कि वर्ल्ड अफेयर्स से अलूफ रहना, not taking part, not reacting to anything, nothing to do with the world affairs. जैसे isolationism sums up the foreign policy of US from the American War of Independence in 1787 up to the beginning of the First World War. 1787 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आइसोलेशनिज्म यूएस ने फॉलो करा कि वर्ल्ड अफेयर्स में उन्होंने कहीं भी पार्ट नहीं लिया, उससे अलूफ रहे. उसके कंपैरिजन में उसके कंपैरिजन में नॉन अलाइंड कंट्री जैसे इंडिया ने एक एक्टिव रोल प्ले करा ताकि दोनों सुपर पावर्स के बीच में मीडिएट करे, अलायंसेस के बीच में मीडिएट करे. देयर स्ट्रेंथ वाज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू सुपर पावर्स टू ब्रिंग देम इनटू अलायंसेस. नॉन अलाइनमेंट मतलब न्यूट्रलिटी भी नहीं होता. न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी रिफर्स टू प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर. देखिए, आइसोलेशनिज्म मतलब वर्ल्ड अफेयर से अलूफ रहना और न्यूट्रलिटी मतलब वॉर से अलग रहना. तो ऐसा नहीं है. स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड अ वॉर. लेकिन इंडिया ने टाइम टू टाइम वॉर को ख़त्म करने में, पीस मीडिएट करने में हेल्प करा. सो दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन वॉर एंड डू नॉट टेक एनी पोजिशन ऑन द अप्रोप्रिएटनेस और मोरालिटी ऑफ अ वॉर. Non-aligned states, including India, were actually involved in war for various reasons. They also worked to prevent war between others and tried to end wars that had broken out. तो नॉन अलाइनमेंट मतलब ना आइसोलेशनिज्म होता है, ना न्यूट्रलिटी होता है. इट जस्ट मीन्स स्टेइंग आउट ऑफ एन अलायंस, not being aligned to any of the alliance. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो दे वर मोर देन मियरली मीडिएटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्री क्या थी कि मेजर ऑफ देम वर कैटेगराइज्ड एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. LDC कैटेगराइज करा था बिकॉज दे वर फ्रीड फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस. तो उनका एक ऑब्जेक्टिव था to be more economically developed and to lift their people out of poverty. So उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो और ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था. ओके, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देयर इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होंगे, तो वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे पावर पर डिपेंडेंट रहेंगे. It would remain dependent on the richer countries, including the colonial power from which political freedom had been achieved. The idea of new international economic order originated with its realization. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. The report proposed a reform in the global trading system so as to. उस रिपोर्ट में जो ये रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट थी टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट जो 1972 में हुई थी, इस रिपोर्ट में ये 3-4 बातें कही गई थी. क्या बातें थी? फर्स्ट, ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको कंट्रोल दिया जाए ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वापस से कंट्रोल कर सके, जो कि उनके पहले कॉलोनाइजर्स ने उसको बहुत ही एक्सप्लॉइट करा था. द सेकेंड थिंग वॉज कि जो LDCs हैं उनको वेस्टर्न मार्केट्स तक एक्सेस मिल सके ताकि वो अपना प्रोडक्ट वहाँ से सेल कर सके, वहाँ से चीज़ें खरीद सके, जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा. द थर्ड वॉज कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास है वो उन LDCs के लिए उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट रिड्यूस हो सके ताकि वो भी उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले सके. एंड द फोर्थ वॉज LDCs को ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में एक पार्ट ली, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया. तो ऐसे बिगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में LDCs का रोल जो है वो फर्म हो जाए. ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशू, मतलब अब पॉलिटिकल से वो इकोनॉमिक की तरफ से शिफ्ट हो चुका था. 1961 में जो बेलग्रेड में फर्स्ट समिट हुई थी उसमें इकोनॉमिक इशूज़ होते वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन मिड 1970s तक वो इकोनॉमिक इशू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे. इसकी वजह से NAM जो है वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था पॉलिटिकल से. By the late 1980s, however, the NIEO initiative had failed, mainly because of the stiff opposition from the developed countries who acted as a united group, while non-aligned countries struggled to maintain their unity in the face of this opposition. तो ये NIEO जो ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का जो ये डेवलप इनिशिएटिव था ये फेल हो चुका था क्योंकि दोनों सुपर पावर्स जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनकी तरफ से बहुत ही स्टिफ ऑपोजिशन मिलता रहा. एंड कहीं ना कहीं ये जितने भी स्मॉलर ग्रुप्स थे ये उनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर पाए. India and the Cold War. As a leader of NAM, India's response to the ongoing Cold War was twofold. कैसे? At one level, it took particular care in staying away from the two alliances, and second, it raised its voice against the newly decolonized
countries becoming part of these alliances. तो दो फोल्ड पे था. पहला, they wanted कि वो खुद भी और इस दोनों अलायंसेस से दूर रहे, और दूसरा ये जितनी भी नई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है वो भी इन अलायंस का पार्ट ना बने. इंडिया की जो पॉलिसी थी ये नीदर नेगेटिव थी नॉर पैसिव थी. मतलब नेहरू ने वर्ल्ड को रिमाइंड करा कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब दूर भागना नहीं होता, कि इस वॉर से दूर रहो, इस वॉर से दूर रहो, ऐसा कुछ नहीं होता. इसका मतलब है कि इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग, ताकि वो कोल्ड वॉर के इश्यूज़ को सॉफन कर सके, कोल्ड वॉर को ख़त्म कर सके. इंडिया ने दोनों सुपर पावर और अलायंसेस के बीच में डिफरेंसेस रिड्यूस करने की बहुत कोशिश करी ताकि एक फुल स्केल वॉर ना हो सके. इंडियन डिप्लोमेट्स जो है और जो लीडर्स है वो आपस में कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, एंड कोल्ड वॉर राइवल्स के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाते थे. जैसे कोरियन वॉर में उन्होंने मीडिएशन करने की कोशिश करी थी. यहाँ पर नोट करना इम्पॉर्टेंट है और याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया चोज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड ग्रुप इन दिस मिशन. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रिपीटेडली ट्राइड टू एक्टिवेट दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच वर नॉट अ पार्ट ऑफ द अलायंसेस लेड बाय द यूएस एंड यूएसएसआर. तो नेहरू का बहुत ग्रेट फेथ था एक जेन्युइन कॉमनवेल्थ में फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस का, जो नेशंस जो है वो आपस में मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके, फ्री रह सके, टेंशन फ्री हो सके, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाए. और ये जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, भले ही कोल्ड वॉर ख़त्म ना हो सके पर एटलीस्ट थोड़ा कम हो जाए. नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सम सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल क्लॉज विच हैड लिटिल टू डू विद इंडियाज रियल इंटरेस्ट. नॉन अलाइन का जो था वो इंडिया के इंटरेस्ट भी सर्व कर सकता करता था. कैसे? दो तरीक़ों से. पहला, नॉन अलाइनमेंट जो ये मूवमेंट थी, जो ये पॉलिसी थी, इसने इंडिया को एक चांस दिया कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस ले सके, इंटरनेशनल स्टेज पर अपने आप को अपने डिसीजंस दे सके और अपनी ओपिनियन को वॉइस कर सके, और वो अपनी ओपिनियन वॉइस करे रैदर दैन द सुपर पावर्स इंटरेस्ट और ओपिनियन. सेकेंड है, इंडिया ऑफन एक सुपर पावर को दूसरे सुपर पावर के अगेंस्ट बैलेंस कर पाता था. कैसे कर पाता था? क्योंकि देखो दोनों सुपर पावर्स को डर था. इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट था एंड इंडिया एक बड़ा नेशन था, काफ़ी इफ़ेक्टिव, मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था. तो एक सुपर पावर अगर कोई गलती करे या इंडिया के इंडिया के अगेंस्ट कुछ करे, तो वो डर था कि इंडिया जाकर दूसरी सुपर पावर के पास ना मिल जाए. दैट इज़ वाई दोनों सुपर पावर्स ने इंडिया को इम्पोर्टेंट पोजीशन दी, और उसको अगर इंडिया को किसी भी एक सुपर पावर से इग्नोर्ड या प्रेशराइज्ड फील हुआ तो इंडिया के पास ऑप्शन था कि वो दूसरे की तरफ चले जाए. तो दोनों अलायंस सिस्टम ने इंडिया को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, उसको बुली नहीं किया, उसको इम्पोर्टेंट दिया. इंडिया की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया. देखिए, इसको अगर सपोर्ट किया गया, यहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट यहाँ पर बताए, तो इसके दो क्रिटिसिजम्स भी है. कैसे दो क्रिटिसिज्म है? फर्स्ट, कि इंडिया का नॉन अलाइनमेंट अनप्रिंसिपल्ड माना जाता है, कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर ये फर्म और क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर स्टैंड नहीं लेता था. तो ऐसा बोलते थे कि क्रूशियल कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, पर उसके ऊपर ये नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे उन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को ये वॉइस नहीं करता था, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के उस पर स्टैंड नहीं लेता था इंटरनेशनल इश्यूज़ में. सेकेंड ये था, ऐसे सजेस्ट करा जाता है कि इंडिया इनकन्सिस्टेंट था, क्योंकि उसने हमेशा से ये क्रिटिसाइज़ करा कि आप दोनों अलायंस को ज्वाइन ना करो. उसके बावजूद 1971 में इंडिया ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली अगस्त में यूएसएसआर के साथ 20 इयर्स के लिए. तो ये रिकॉर्ड किया जाता था कि ये व्हाट इज दिस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. आप बोल रहे हो कि डू नॉट ज्वाइन एनी अलायंस, फिर आप जाकर यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लेते हो फॉर 20 इयर्स. तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो था, ये सोवियत अलायंस सिस्टम के साथ ये फ्रेंडशिप वाला ज्वाइन करना, ये व्यू कर देते कि ये इंडियन गवर्नमेंट की इट वाज अ मिस्टेक, या ये फिर ये गोइंग अगेंस्ट योर ओन पॉलिसी होता था. द इंडियन गवर्नमेंट्स व्यू वाज दैट इंडिया नीड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस, एंड इन एनी केस द ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया फॉर हैविंग रिलेशंस विद यूएसए. तो वो लोग कहते थे कि आप जाकर आपने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली, तो आप इट इज़ नॉट देन जॉइनिंग एन अलायंस. तो इंडिया का कहना ये था कि इट वाज नथिंग लाइक दैट. बांग्लादेश क्राइसिस के वक्त इफ़ यू रिमेंबर कि कैसे ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से फ्री हुआ था उस टाइम पर. सो इंडिया का कहना ये था कि इट वाज नेसेसरी कि मिलिट्री सपोर्ट मिल सके उन्हें और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल सके बांग्लादेश क्राइसिस के वक्त. तो इट वाज नथिंग मोर देन दैट. ये फ्रेंडशिप कोई अलायंस ज्वाइन करना नहीं था, इट वाज जस्ट फॉर देयर ओन मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट. एंड इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप बिगाड़ दिए.
सो नॉन अलाइनमेंट एज अ स्ट्रैटेजी इवॉल्व इन द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट एज वी विल सी इन चैप्टर 2. हम देखेंगे कि एक बार यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये कोल्ड वॉर जो ये एंड हो गया, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने भी कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम लूज कर दिया, क्योंकि उसका कोर मोमेंटम यही था कि वो दोनों अलायंस ज्वाइन ना करना. उसमें से एक सुपर पावर, एक अलायंस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो फिर नॉन अलाइनमेंट ने भी कहीं ना कहीं अपनी मोमेंटम खो दिया था और उसका रेलेवेंस और इफेक्टिवनेस खत्म हो गया था. लेकिन उसके बावजूद नॉन अलाइन ने कोई और कोर इश्यूज और वैल्यूज और इंड्यूरिंग आइडियाज़ के साथ कंटिन्यू करा. इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकग्निशन कि डीकोलोनाइज स्टेट्स जो थे उनका एक हिस्टोरिकल अफिलिएशन है दैट दे कैन बिकम अ पावरफुल फोर्स अगर वो सभी साथ आ जाए तो. सो दे कैन बिकम वेरी पावरफुल. इसका मतलब ये था कि जो पुअर एंड ऑफन वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है उनको ज़रूरी नहीं कि वो किसी बड़े सुपर पावर का पार्ट बने तभी वो डेवलप हो पाएंगे. दे कैन कम टुगेदर एंड दे कैन ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंटली डेवलप देमसेल्व्स एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड एबल एंड इंडिपेंडेंट. तो इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रिजॉल्व कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को हमें डेमोक्रेटाइज करना चाहिए एंड ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर को एग्जिस्ट करना कि जिसमें ये सारी जितनी इनइक्वालिटीज़ है ये ख़त्म हो जाए एंड ये जो एक मल्टीपोलर सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हो सके. देखिए आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. The first one is Limited Test Ban Treaty जिसका नाम है LTBT. This banned nuclear weapon test in the atmosphere, in outer space and underwater. This was signed by the US, UK and USSR in Moscow on 5 August 1963 and entered into force on 10 October 1963. The second is Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT. It allows only the nuclear weapon states to have nuclear weapons and stops others from acquiring them. For the purpose of NPT, a nuclear weapon state is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 1967. So there are 5 nuclear weapon states: US, USSR, Britain, France and China. Signed in Washington, London and Moscow on 1 July 1968, entered into force on 5 March 1970, extended indefinitely in 1995. Do remember NPT को इंडिया ने हाईली क्रिटिसाइज करा है. Strategic Arms Limitation Talks SALT 1. The first round of the Strategic Arms Limitation Talks began in November 1969. ये जो सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव और यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के बीच में साइन हुआ था और मॉस्को में साइन हुआ था 26 मई 1972 में. इसके पर्पस थे टू द ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ABM ट्रीटी एंड सेकेंड द इंटरिम अग्रीमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 3 अक्टूबर 1972. SALT 2 जो था वो नवंबर 1972 में इसका सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ. उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट चेंज हो गए थे, जिमी कार्टर, एंड सोवियत लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव. उन्होंने ये लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स VNR 18 जून 1979 में साइन किया था. द अदर इज द START 1, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1. ये यूएस प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के बीच में साइन हुआ था. It aims at reduction and limitation of strategic offensive arms in Moscow और ये साइन हुआ था मॉस्को में 31 जुलाई 1991 में. START 2, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2, साइन हुआ था बोरिस येल्सिन रशियन प्रेसिडेंट के बीच में और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के बीच में. ये आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR है और इट ऑल्सो एम्स एट रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन मॉस्को ऑन 3 जनवरी 1993. विद दिस हमारा ये पूरा चैप्टर कोल्ड वॉर इज ओवर.